Thank you everyone for joining. We'll start at around 7:05.
A very good evening to everyone present here. On behalf of the Student Counseling Services and the Career Council, we welcome you to this insightful session, Acing Placements. I am Vaibhavi and I'm truly delighted to host you today. Are you confused about which career profile you want to choose? Are you having doubts about your chosen profile? Are you confused about what to do for a good career? Don't worry, your Sakha, the Career Council is here to address all your doubts. The Student Counseling Services, SCS, is a student faculty body that aims for the holistic advancement of students on campus. It comprises five councils: wellness, academics, career, skill development, and international exchange, along with the operations vertical to manage its functions. The Career Council helps students find the best career domains and land their dream jobs. It takes multiple initiatives, including acing placements, acing internships, intern diaries, placement diaries, career boot camps, and AMA sessions. Now, I would like to welcome our seniors, Mr. Ritik Kumar Pandit, Triple E 25, currently working in Texas Instruments, and Mr. Vishal Sharma, Triple E 25, currently working in NVIDIA. Hello. Hello. Yeah, good evening, everyone. I am Ritik, and I uh, I am 2025 pass out, and I am currently working in Texas Instrument. And thank you all to inviting me for this session. So let's have some doubt. What kind of questions you want to ask? You can unmute and have some So, interaction. hmm, actually, we have compiled some questions for everyone's Yeah, doubts, sure, so sure. it would be better if you could answer them. Yeah. So, first is, what resources were used for the core preparation? So like I would say, I will say for the analog domain, like in the core, there are multiple domains. Digital is one of them, analog is one of them, embedded system is one of them. So for the analog profile, you can see from the basic perspective, you can uh, study it from the circuit theory book. So the first and foremost important thing is the circuit theory that you have to cover, and then second, for the transistor, you can study from the uh, Behzad Razavi analog design book, Behzad Razavi, and there are other YouTube channels also, like one is them. Uh, all about electronics. I am forgetting. All about electronics is there, and one or two more other channels are also, they provide good uh, practice material, like the Himanshu Agarwal. If one of any of you are uh, preparing for analog, you must know the Himanshu Agarwal, and another is also called some Amit Var. So they focus mostly on the analog part, and they will give you question. They will you give you time to practice, and they will explain you the same question, just you would have done in the JE part. So these are some, and it is up to you to practice. So these are some sources where you can go to the analog domain. Okay, thank you. And like, how can you stay consistent with the preparation? Having so many things on your plate and staying consistent with it. Yeah, that's something that you people have to do. For the consistency part, you people have to do, if you want to, like, if you are here, if you are in IIT, so you must have some consistency. You have hard work. Okay, so that is, I think that is embedded in your mind, hardworking and consistency. You have to manage your time. If you are a part of club,
then you have to somehow manage your time. So in the earlier time, like first year, second year, you can give some time to clubs, etc., to have other kind of exposure. But if you're especially focusing on the placement, then it is your choice. You can give more time on the placement preparation. And is there any typical interview procedure for core roles that is different from SD or any other one? See, I have not given any SD interview, so I cannot judge what kind of interview they are facing. But if you are preparing for analog core, especially in analog in Texas Instrument, then I can give you some tips. Like first, they generally do not ask from the project. You should have project in your resume, but they generally do not ask. They have their questions, they prepare their question, and they will ask you one by one. So that question, like it is not kind of you have seen somewhere and you just remembered it. They will give you first simple question, then they will add something into it, then they will ask follow-up question, and this will keep going on maybe for half an hour, like 20 minutes, half an hour. Then they will change the question, they will again ask basic things, and they will keep adding different things. Like they will mostly ask on circuit. So suppose if they are asking from something like op-amp, so they will add one resistor, they will ask you, they will add diode, they will give some voltage source, they will ask what will be the voltage here and there. So the main thing is you are not supposed to remember the equation, the format, the circuit. You are not supposed to remember. You are supposed to understand the basic concept, and based on those basic concept, if they are asking any kind of circuit, any kind of topology, if your basics is clear, you can explain them. Thank you. And like you suggested the resources, what could be the preparation strategies? Preparation strategy. So I will focus on the analog part because that I have seen. So I would give you in the level wise, different level you can go with the. So in the first level you can cover the entire circuit theory, starting from the voltage source, current source, the basic circuit theory like Thevenin theorem, Norton theorem, KCL, KVL, and all those things. These parts are clear, then you can move to the RC circuit, LR circuit, etc. So RC circuit is I will call it very important. RC circuit, LR circuit is not that much, but you should have idea and definitely study that. But RC circuit, you should have a good understanding, not from the equation perspective, but exactly the circuit perspective that we basically did in the JE. Like initially the capacitor we assume discharged, current can flow, but in finite time that gets like kind of open circuit. So that kind of perspective you have to develop. After covering the RC circuit, you can move to the op-amp, and op-amp is also I will call VVI. Very important topic to study if you are preparing for analog. And for op-amp, it is not just again remembering equations. You have to understand what op-amp does if it is placed inside a circuit. So like in the op-amp, there are 4 or 5 just general kind of topology, inverting op-amp, non-inverting op-amp, amplifier kind of, inverting amplifier, non-inverting amplifier, differentiator, integrator. So study these things, but don't remember only these 4 to 5 topology. There are many topologies around the op-amp, and don't try to remember everything by equation wise. Understand the circuit, understand the basic. Then if you are given any kind of topology, any kind of network around op-amp, whether it is capacitor, resistor, and a diode,
if your basics is clear, you will be able to explain it correctly. So op-amp is first is circuit theory, RC circuit, op-amp, study it well. Then you can go to the transistor level like MOSFET, and that you can study in from the Behzad Rajavi books. So in 4 level you can prepare. That strategy I would suggest. Okay, thank you. I would now like to invite the other senior also, Mr. Vishal Sharma, Triple E 25, currently working in NVIDIA. Could please switch on your camera and mic. क्या भाई मेरी बातें चल रही है क्या? मेरे को करने को बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो भाई? हाँ भाई प्लीज इनविटेशन भेज दूं क्या? 1 मिनट बस, 1 मिनट और रुक जाओ यार, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया मैं। हाँ श्योर। मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा। क्या नाम होता है इसका? भाई थोड़ी देर और ऋतिक से बातें करो यार तुम लोग, बस 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं अच्छा, लगेंगे। किसी का कुछ स्पेशल डाउट होगा, कुछ जो कुछ पूछना है? Hello, Bhaiya. हाँ, Can you brief through your interview experience, like what questions they asked you and how much time did they take your interview? my interview lasted around 1 hour. So they simply started with RC circuit. They wanted to explain me, and again, as I said you, not on the equation perspective, intuitively, what is happening on the circuit. Suppose let us say R and C is there. So initially, what will happen? Capacitor will be discharged, maximum current will flow, and as the capacitor will charge, the current will reduce. So that kind of perspective you have to explain in the interview. Then in the RC circuit, they will add another resistor. They will ask again. They will add another capacitor. They will ask again. They will give some diode. They will say now there is some sine wave input. What will be the output? This kind of conversation lasted around 20 minutes. Then they again move to the op-amp, and again in the op-amp they will first start with some basic circuit. They will ask you, then they will keep adding on different component. They will give different scenario. Suppose sometimes they will give voltage source, sometimes they will give current source, and slowly they will keep adding on different thing, and they will test you how much you can explain, up to how much extent, up to what complexity level you can explain. So these two took me around 40 to 50 minutes. Okay, Bhaiya. So Bhaiya, like talking about MOS physics or MOSFET wala part. Yeah. So Yeah. how did you prepare that? No, like honestly speaking, I was not prepared for the MOSFET part at that time during my intern. If you are for the placement people, so better to prepare MOSFET part also. So for MOSFET, you can prepare from the Behzad Razavi. Start with the basic physics of MOSFET, like how channel is formed, what effect of the gate voltage on the channel, what is the current equation like ID equal to half mu n C of W by L, VGS minus VTH whole square. So this kind of equation, basic equation, then GM, what is the R out, then small signal. These things you have to prepare for the MOSFET. That is the building block of the IC. Then you have to study what other things is built using this MOSFET. Like the building blocks are obviously MOSFET, but from the MOSFET you build current mirrors, amplifiers, and switches. So that you have to have some idea, or better to have some preparation. Yes. One more thing, CMOS side, I would like to add, like what you can do, जो MOS sizing and all. Have you heard about that? If
you in like how do you size the mosses, like what are the requirements? Sometimes what will they do, they will give you a practical scenario, we want to made a particular type of circuit, and then they will ask about the mosses, like how the mosses will be used in this circuit. So take 1 2 examples from YouTube how to like we use mosses, so that will be helpful. और उसे मतलब मॉस की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी तुम लोगों की, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। यार बाकी लोगों ने कैमरे क्यों नहीं ऑन कर रखे यार, कॉलेज में ही हो ना सब लोग, ये जबरदस्ती तो ये लोग बैठा के नहीं रखे ना तुमको। भाई देखो, शनिवार का टाइम है, सब लोग तैयार हो रहे होंगे, बाहर खाना खाने जाना है सज धज के, और फिर देखेंगे हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, भैया बुरा मान के चले जाएंगे। ओपन कर लो भाई कैमरा, चिल है यार। Like to ask you also a few previous questions, like what resources and preparation strategies should one follow for going into core? मेरे से हाँ, देखो यार सिंपल सी बात है कि मैं माय डोमेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं अपना इंट्रो खुद ही दे देता हूँ। और लाइक अभी मैं एनवीडिया में हूँ, उससे पहले टेक्सास में इंटर्न थी ऋतिक के साथ ही। उधर से पीपीओ नहीं दिया उन लोगों ने मेरे को, फिर फिर इधर आ गए। तो देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम में से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं ना मैक्सिमम लोग, या फिर इंटर्न का है? प्लेसमेंट मैक्सिमम है। Okay, so maximum are for placement now. So what happens in placement? Internship के tests you have already gone through that. पूरा internship process कैसे OA होते हैं, कैसे interviews होते हैं. What is different here is syllabus wise there are some different like syllabus थोड़ा सा और increase हो जाएगा intern के time से। जो intern के time पे की थी वो चीज़ें थोड़ी और depth में करनी है। उसके अलावा core companies जो if you have not gone through operating systems yet, go through that. ऑपरेटिंग सिस्टम्स पूछती हैं ओएस नॉर्मली, लाइक कैशे मैपिंग वगैरह कैसे होती है, और उसके अलावा जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं उसके लाइक प्रोसेस शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस आएंगे ओए में भी, एंड उसके अलावा जो मेन इंटरव्यू होगा उसमें भी। उसके अलावा कोडिंग करो, कोडिंग सबको करनी है। देखो वो इंटरव्यू में भी कोडिंग पूछते हैं, ओए में भी कोडिंग पूछते हैं। कोडिंग नॉट लाइक कि तुम्हें पूरा सिंटेक्स पता होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, बट यू शुड नो एल्गोरिदम, हाउ एल्गोरिदम वर्क्स, लाइक क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स फॉर लाइक नॉर्मल सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, जो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग वाले एल्गोरिदम्स हैं अपने, मतलब सबने की होगी यार कोडिंग, तो कोडिंग जरूरी है, सब पूछते हैं। तो वो वाली एंड उसमें तुम मतलब उस टाइप के चीजें कर सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार कि ये कोई इस वाले एल्गोरिदम से अगर करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, और कैसे वो रिड्यूस हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है। तो वो चीजें पढ़नी है। और नॉर्मल तुम्हें ऐसा है कि इंटरव्यू में कई बार कोड अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द आइडिया, क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे तुम ऑप्टिमाइज कर रहे हो चीज़ों को। तो ये बढ़ जाता है, इंटर्न में ये चीज़ें नहीं पूछते हैं। एंड उसके अलावा पजल्स पजल्स करो सारी, जीएफजी पे जस्ट सर्च टॉप 100 पजल्स और टॉप 50 पजल्स वॉट एवर, पजल्स सारी करनी है। अगर पजल्स नहीं करोगे 50% इंटरव्यू खत्म है तुम्हारा, क्योंकि दे विल स्टार्ट इन प्लेसमेंट, इन इंटर्न में ऐसा नहीं पूछते थे। प्लेसमेंट में जो इंटरव्यू है वो तुम्हारा स्टार्ट ही पजल से होगा, कोई स्टैंड, और पजल्स स्टैंडर्ड होते हैं। अगर तुम्हें जीएफजी की पजल्स की हुई हैं, और बहुत इजी है यार, जस्ट पढ़ लो उनको, पढ़ने में ही मजा आएगा। वो पजल्स कर लो, पजल्स पूछेंगे। तो ये मेरे को 2 3 चीजें डिफरेंट लगी। उसके अलावा रिसोर्सेज तो ठीक है यार, यही रिसोर्सेज हैं और कुछ ज्यादा है नहीं। वेरी लॉग कोडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, इंटर्न में उतना रिकमेंड नहीं होता है, प्लेसमेंट्स के टेस्ट में वो वेरी लॉग पूछते हैं। एंड गो थ्रू दैट, लाइक क्या अगर तुम ओए अगर तुम्हारे शुरू हो गए हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं, तो ओए शुरू हो जाने के बाद जो ओए के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिस्कस करो आपस में। इंटरव्यू में वो क्वेश्चन, वो सेम टू सेम क्वेश्चन तुमसे, भले ही तुम सही करके आए हो गलत करके आए हो, दे विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, एंड अप्रोच पूछते हैं कि कैसे अप्रोच किया था इस क्वेश्चन को तुमने ओए में, या फिर गलत किया है तो उनके सामने बैठ के फिर अप्रोच करो। तो तुम एक थोड़ा
उसको डिस्कस करके जाना। यही चीज़ें हैं। रिसोर्सेज तो लाइक मोस्टली मैंने शेयर किए हुए हैं तुम लोगों के साथ। मैं इन लोगों को शेयर कर दूंगा, ये तुम्हारे तक पहुंचा देंगे। मेरी मतलब एक ड्राइव थी जो मैंने बनाई थी मेरे टाइम में, जो जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी, हर चीज़ कहाँ से पढ़ी थी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, एप्टीट्यूड कर रहे हो ना सब लोग? एप्टीट्यूड समझते हो ना? एप्टीट्यूड का मतलब टीआई सिर्फ एप्टीट्यूड देख के शॉर्टलिस्ट करेगी तुम्हें। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से अगर तुम 15 प्लस कर पा रहे हो, आधा घंटा टाइम होगा, और उसके तुमने प्रीवियस ईयर अगर अभी तक नहीं किए हैं तो तुम बहुत लेट हो। प्रीवियस ईयर लगाओ। प्रीवियस ईयर बहुत मतलब कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, रिपीट नहीं होंगे तो तुम्हें लेवल का पता चल जाएगा उनका, कितने लेवल पे वो एप्टीट्यूड पूछते हैं। और अगर एप्टीट्यूड तुम नहीं कर रहे हो, तुम डिजिटल एनालॉग जिस भी फील्ड में हो, जो भी वट तुम पूरा का पूरा सही करके आओगे, शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। सिंपल। वो इंटरव्यू में एप्टीट्यूड नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू में पजल्स पूछेंगे, वो एप्टीट्यूड का पार्ट ही मान लो। बट ओए के लिए एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करो। 30 मिनट्स 20 क्वेश्चन, सेम फॉर फॉर कॉलकम, फॉर दिस एक्सेस, दोनों का सेम पैटर्न है। एनवीडिया की चीज़ें मिक्स होती हैं, उनका ऐसे अलग से सेक्शन नहीं होता, पर इनका तो प्रॉपर सेक्शन होता है। और तुम टाइम लगा के प्रैक्टिस करो उसकी। एक इंडिया बिक्स करके साइट है, वहाँ से कर सकते हो, बट उसमें बहुत सिंपल्स होंगी। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं यही बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर्स करके जाओ। प्रीवियस ईयर से तुम्हें एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा प्रिपेयर्ड भी रहोगे। मतलब यार, तुम लोगों ने अगर कैट वैट के क्वेश्चंस देखे होंगे कैसे आते हैं, वो एक पूरा पैराग्राफ दे देंगे एंड उसके नीचे 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनमें टाइम लगता है यार, टाइम लगेगा तुम्हें उनमें। तो वो प्रैक्टिस करके जाओ तुम थोड़ा उसको। लाइक इट्स नॉट लाइक कि तुम सिर्फ डिजिटल एनालॉग या फिर और जो भी फील्ड है वो करके चले गए और एप्टीट्यूड नहीं किया तो दिक्कत आएगी। देखते हैं वो लोग इसको वेटेज देते हैं, लाइक वो करो। ये 3-4 चीजें हैं, ये ध्यान रखना। बाकी तो सब नॉर्मली होता है जैसे इंटर्न में हुआ था। लेवल वाइज मेरे को दोनों, जैसे अगर सिर्फ डिजिटल या फिर एनालॉग का लेवल पूछे तो वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लाइक मैं डिजिटल दोनों के दिए थे, मेरी शॉर्टलिस्ट भी आई थी दोनों में, डिजिटल एनालॉग में। तो ओए का लेवल इंटर्न में प्लेसमेंट में सेम ही है। हाँ, बस चीज़ें थोड़ी वो हो जाती हैं, सिलेबस थोड़ा बढ़ जाएगा, कुछ चीज़ें नई ऐड हो जाएंगी एंड इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। So, can you tell us more about like how is the interview procedure for core roles? हाँ, इंटरव्यू इज लाइक तुम लोगों में से मोस्टली इंटर्न के कुछ कुछ इंटरव्यूज दिए होंगे, अगर नहीं भी दिए हैं तो सिंपल है। देखो, तुम जाओगे, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो अपना रट के रखो, क्या इंट्रो बोलना है, हर कंपनी का वही इंट्रो है। तुम और इंट्रो टू, इट शुड नॉट बी लॉन्ग, मोर लाइक 2-3 मिनट्स मैक्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स की लिमिट लगा के चलो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंट्रो। एंड आफ्टर इंट्रो, इंट्रो में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, बहुत बेसिक सी जो रिज्यूमे में लिखनी है वो इंक्लूड मत करो, रिज्यूमे तो बंदा पढ़ ही रहा है। उसके अलावा ये चीज़ें करो। देन उसके बाद अगर तुम्हारी, उसके बाद क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो पजल्स, सबसे पहले पजल से शुरू होंगे। मैं लाइक कॉलकम, एनवीडिया, टेक्सास, सब पजल से शुरू हुए थे मेरे प्लेसमेंट में। तो पजल से शुरू करो तुम। पजल्स होंगे, एक या दो स्टैंडर्ड पजल पूछेंगे वो। उसके बाद पजल्स के बाद तुमसे टेक्निकल डिजिटल, जैसे मेरे को डिजिटल का ज़्यादा आइडिया है, तो डिजिटल में वो नॉर्मल तुमको कुछ सर्किट डिज़ाइन के क्वेश्चन दे देंगे कि हाँ, वो जैसे कि तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे कि मक्स यूज करके कुछ डिज़ाइन बनवा ली, या फिर कुछ और चीज़ यूज करके एक डिज़ाइन में बनवा ली। तो उस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना, वो क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे पूछते रहेंगे, ठीक है? ऐसे फिक्स कितने क्वेश्चन पूछने हैं। एंड देन उसके बाद रिज्यूमे पे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स का ऐसा है कि तुमने अगर कुछ भी एक वर्ड लिखा है तुमने रिज्यूमे में, वो रिज्यूमे गो थ्रू कर रहे हैं, उन्हें एक वर्ड दिखा, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है हमको, या फिर उन्हें उसका आइडिया है, वो उसके ऊपर तुमसे पूछ लेंगे। तो मेक श्योर जो तुम रिज्यूमे में लिख रहे हो तुम्हें आता है और अच्छे से आता है। ये नहीं कि तुम, ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा पागल बना दूंगा लोगों को, ऐसे नहीं होता वो। तुम्हें अच्छे से आना चाहिए जो भी रिज्यूमे में लिख रहे हो वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और अगर तुमने उसमें गलती कर दी तो मतलब बहुत गलत इंप्रेशन जाता है कि यू आर सेइंग देम कि हमने ये चीज़ किया है एंड देन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो वो चीज़, उसके ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं पूछते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन, बट हाँ, प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करके जाना। एंड देन अगर इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप का थोड़ा अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना, क्या इंटर्नशिप में क्या किया है क्या नहीं किया है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। बट हाँ, अगर इंटर्नशिप है तो उसका प्रिपेयर कर लेना। मोस्टली यही होता है। एक और कई बार ऐसा है जैसे कॉलकम 2 राउंड लेती है, एनवीडिया 1 ही राउंड था इस बार।
Qualcomm के 2 राउंड थे, ओला के तो 3 राउंड थे, पर मोस्टली का प्रोसेस यही था। एंड ये था कि तुम अगर जैसे तुम में से अगर कोई इलेक्ट्रिकल से है ना, तो कई बार तुमसे ऐसे सर्किट्स के क्वेश्चन से पूछ लेंगे, तुम्हें लगेगा ये डिजिटल का पार्ट ही नहीं है, बट जो नॉर्मल सीरीज RLC सर्किट और उस टाइप के सर्किट्स होते हैं, फिल्टर्स उनके बारे में भी ये मेरे से कॉल ने पूछ लिया था। लाइक देवर लाइक कि तुम इलेक्ट्रिकल से हो तो ये सब तो आता ही होगा, तो देवर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। और उसके अलावा मोस्टली वही है कि कॉन्फिडेंट रहना। प्रोसेस यही होगी, लास्ट में HR राउंड होता है। HR राउंड का तो सिंपल है, वही रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं उनके कि क्यों आना है क्यों नहीं आना। कॉलकम 2 राउंड मान के चलो, एनवीडिया 1 ही राउंड और टेक्सास के 2 राउंड मान के चलो, इतने होंगे। और दोनों का ऐसा नहीं है कि इसमें एक अलग होगा दूसरा अलग होगा, दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा। यही था इस साल तो एटलीस्ट। So you were mentioning projects. So what are the key projects that should be on your resume to make it stand out? If you both could answer it. I guess Ritik will answer first. भाई एनालॉग कोर दिखना चाहिए, कोर इलेक्ट्रिकल चीजें दिखनी चाहिए, और क्या। क्योंकि भी ऐसा तो नहीं बता सकता मैं एग्जैक्ट यही प्रोजेक्ट बना के जाना चाहिए, वो तो प्रोजेक्ट अब जो प्रोजेक्ट डाल रहा है उसको देखना है कि प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, बस क्या। लाइक फॉर डिजिटल आई वुड से कि एक तो जो भी तुम इंटर्न पे किए हो या फिर नहीं भी किए हो, तो कुछ तो लगाना होता है इंटर्न के नाम पे, वो ऐड करो। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम कोई भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, जस्ट यू शुड नो अबाउट दैट। एक प्रोजेक्ट आई वुड रिकमेंड दैट, तुम्हें डालना है नहीं डालना है इट्स योर चॉइस, बट एक इंद्रनील सेन गुप्ता सर का प्ले लिस्ट है, लेक्चर है एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, अराउंड 65 लेक्चर्स की पूरा प्लेलिस्ट है। तो उसमें वो एक प्रोजेक्ट बनवाते हैं RISC-V प्रोसेसर का। तो वो ऐसा है कि तुम प्रोजेक्ट डालो मत डालो, बट आई वुड रिकमेंडेड वो गो थ्रू करो, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक्स। लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेसिक्स के लिए। तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे उससे, जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर किया है ना तुम लोगों ने, लाइक किसने किया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तुम मान के चल रहे हो ना ये सिलेबस का पार्ट है। मेरे को दिख नहीं रहा, किया है ना तुम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर? नहीं किया तो कर लो अभी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके जाना, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐसे अलग से कुछ नहीं होता, यही मेमोरी मैनेजमेंट, उसके अलावा चीज़ें जो तुम्हारे कोड वगैरह होते हैं वो सब ठीक है, मतलब लोग किए हुए हैं। तो उसके लास्ट में वो एक प्रोजेक्ट करवाते हैं RISC-V प्रोसेसर का, पाइपलाइनिंग वगैरह एंड ऑल। तो उसमें ये है कि तुम्हारे बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, तो वो तुम रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, वरना सीखने के लिए वो एक बार देख लेना। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है वो। उसके अलावा वही है कि वेरी तुम कोई एक वेरिलॉग का प्रोजेक्ट डाल दो, वेरिलॉग यूज करके बनाया है एक तुम सिंपल सर्किट, मतलब जो भी प्रोटियस वगैरह यूज करके बनाया है, या फिर वॉट एवर प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग उसको उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाया है। बट हाँ, ऐसे कोई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट नहीं है, बस ये है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम भले ही कॉपी करो कहीं से या फिर किसी सीनियर से मांगो, किसी किसी का भी लगाओ, बट उसकी हर चीज़ समझ के जाना। मतलब फ्रेंकली ये जरूरी नहीं है कि तुम खुद से ही बनाओ प्रोजेक्ट, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता। बस ये है कि तुम ऐड कर रहे हो, तुम्हें उसकी चीज आनी चाहिए सारी की सारी। So what are the topics that companies mostly focus on and the things that are asked in the OAs? मतलब in digital simple FSM you should know about FSMs, they are most important part of the process। FSM like including counters, dividers and all जो भी बनाते हैं FSM का यूज करके, तो you should know that about that। registered and all वो सब इसका पार्ट हो जाता है। Second most important thing is the STA। I would say first important thing is STA, second is this FSM। STA is very important, like for in both interviews and OAs। In NVIDIA I would tell you like at our time उनके OA में 17 क्वेश्चंस में से अराउंड 6 और 7 क्वेश्चन सिर्फ STA के ऊपर थे। So you should know about STA, what is STA, not just by definition what is setup hold time, what is hold time, you should know in depth
why setup time exists, why hold time exists, how to avoid, how to calculate frequency and all. So STA is very important. If STA, FSMs, and I would share you a very good resource for STA. वहाँ से तुम्हें काफी अच्छा समझ आ जाएगा. And you should know about FSMs. And then this combinational logics like muxes and all. Mux is काफी important है. How we design using muxes, like if we want to design other circuits using mux, so वो कैसे होता है. And Morris Mano, do all the questions of Morris Mano, like all the solved examples, all the practices, whatever are mentioned at the end of the chapter. ना there are some questions, so वो सब करो. And वो काफी बार ऐसा इट विल बी वेरी सरप्राइज कि सेम टू सेम डाटा के साथ उठ के आ जाएंगे वो चीजें. ठीक है, तो वो करके जाना, वो काफी सही है. 3 चीजें. और ये काफी इम्पोर्टेंट. बाकी तो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही गई. अभी कंपनी ओएस भी पूछने लगी हैं, कोडिंग का भी पूछती हैं, बट इम्पोर्टेंट चीजें यही हैं. बाकी अगर इंटरव्यू का पूछे तो इंटरव्यू के लिए तो मैं बोलूँगा पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पजल्स करो यार, पजल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यही था फॉर एनालॉग रिक्टिफायर. भाई बता ही दिया है. आरसी सर्किट इंपॉर्टेंट है, ओपन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर लेवल वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, और ट्रांजिस्टर के लिए वो काफी बढ़िया बुक है बेहद रजावी. राजा भी था. राजा भी अभी एंड हाँ, कॉलेज लेवल पे राजा हाँ, भी बेस्ट नहीं है. यहाँ भी भाई 2-3 लोग के क्यूबिकल में पड़ी रहती है रजावी की बुक. राजा भी इज गॉड. तो डू दैट लाइक. हाँ यार, एक दो सिंपल सी चीजें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो. अगर नहीं करोगे तो कटेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब तुम कंपनी के ओए देने जा रहे हो, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्या आने वाला है. हम मेरे साथ इंटर्न में क्या हुआ था, हम सब लोग एनवीडिया का टेस्ट देने गए थे. सबको याद है क्या हुआ था. तो वो एकदम ही अलग पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं, और हमको किसी को नहीं पता था क्या पैटर्न पे होता है. तो जब उन्होंने शॉर्टलिस्ट वॉर्टलिस्ट सब निकाली, लास्ट में एचआर वाज लाइक कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं आता है. क्योंकि लोग ऐसा नहीं है, आता नहीं है. देखो, तुम जो भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तुम्हें हर कंपनी का ओए निकालने में लाइक टैलेंट सब में है भाई. ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट फिजिक्स साइंस नहीं पूछ रहे हैं वो, ठीक है. बट ऐसा है ना कि हाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं ओए में, देन वो बहुत सही होगा. ओला वगैरह के ओए होते हैं भाई, वो तो तुम प्रीवियस ईयर किए बिना कर ही नहीं सकते. तुम उसके क्वेश्चंस देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा वो क्या क्या पूछते हैं भाई. वो कुछ भी पूछते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स करके जाओ. बट मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत अजीब कंपनी है. तो और हाँ, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा तुम्हारे उन सबके साथ जो भी कंपनीज के मेरे पास हैं. काफ़ी अच्छी ड्राइव है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए. उसके अलावा अभी क्या हो रहा है एनआईटीज में, सबको हिंदी समझ आ रही है ना. तो ये है इंग्लिश में मैं स्विच लाइक समझ आती है ना, ठीक है. तो व्हाट हैपनिंग लाइक इन एनआईटीज एंड बिट्स एंड ऑल, जो भी colleges हैं, their placement process is already started. So all the companies have visited their campus and all. So try to get the questions from there, because what happens in our college, we go to that classroom and all, and there बहुत ज़्यादा proctoring होती है और सब. But in NITs वो रूम से पेपर देते हैं, रूम से इन बिट्स एंड ऑल, पूरा रूम से पेपर देते हैं. तो कई बार वो स्क्रीनशॉट्स एंड रख के रखते हैं वो. तो मेक फ्रेंड्स इन एनआईटीज एंड ऑल, अगर अभी तक नहीं है और हैं तो उनसे क्वेश्चंस निकलवाओ. दे विल बी एग्जैक्टली रिपीटेड. आई एम सेइंग यू, दे विल बी एग्जैक्टली रिपीटेड एटलीस्ट 30-40%. सो इफ यू हैव कनेक्शंस देन यूज देम. इफ यू डोंट देन मेक कनेक्शंस. क्योंकि उधर सारे टेस्ट हो चुके हैं भाई. एनवीडिया हर जगह से हायर कर चुकी है, टेक्सास हायर कर चुकी है, सब जगह हो चुके हैं. और वो एटलीस्ट तुम पैटर्न तो चेंज नहीं करने वाले. और हमारे टाइम पे तो क्वेश्चन तक चेंज नहीं किए थे कई बार. 30 से 40% रिपीटेड था. और हर कंपनी में लाइक टेक्सास, एनवीडिया, कॉलकॉम, जो भी, और ओला, और जो भी 2-4 कंपनी आई थी, सब सब में रिपीटेड था. तो फाइंड दैट. अगर तुम्हारा साथ का है, उसने तैयारी नहीं की और उसको क्वेश्चन मिल गए ना, वो फिर भी तुम उसकी शॉर्टलिस्ट आ जाएगी. मेक श्योर कि सिर्फ तुम्हें, देखो यार, एक और चीज मैं बताता हूँ फंडा. तुम्हें शॉर्टलिस्ट लानी है कैसे भी लाओ. तो ये सिर्फ ये नहीं है भाई मैं तो पढ़ा था, मेरी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं आई. वो नहीं पढ़ा था, उसके पास क्वेश्चंस थे. तो वो चीज़ तुम थोड़ा समझ लो. ये अभी तुम्हारे ओए शुरू नहीं हुए हैं ना ढंग से. वंस द ओए विल स्टार्ट, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या होता है. वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है.
Also, so when aiming for a career in core, what is more important, like a strong foundational knowledge in the theoretical concepts or the practical coding skills? I think it's always about fundamental. But like we are talking like देखो, you have fundamentals, you have everything, but now at this point we are just talking about the placements. कैसे placement चाहिए? You have very good fundamentals, but तुम्हारी practice नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे. You have practice, you have fundamentals, but you don't know किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. तुमने प्रैक्टिस नहीं की हुई पहले से, तुम्हारे पास क्वेश्चंस नहीं है, तो जिसके पास क्वेश्चंस हैं उसको एडवांटेज होगा. तो फॉर लॉन्ग टर्म्स इज ऑलवेज फंडामेंटल्स, बट तुम्हारे लेवल पे मैं अभी यही कहूंगा भाई, फंडामेंटल्स इज ओके, बट ट्राई टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज. इंटरव्यूज में जाके तुम्हारे फंडामेंटल्स मेल नहीं काम आएंगे, बट वहां तक अगर तुम पहुंच ही नहीं रहे हो तो इट्स ऑल लाइक, इट्स नॉट कि तुम्हें भाई फंडामेंटल्स में प्लेसमेंट दिला देंगे. इंटरव्यूज में फंडामेंटल्स विल हेल्प यू, बट इंटरव्यू तक तो पहुंचो यार पहले. तो उसके लिए तो आई वुड से कि प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो. देयर इज नो लिमिट. और लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं यार अगस्त को. Like some of the common mistakes that you made or the people make during the core preparation phase, like some mistakes that you both made or you saw your friends make. मुझे क्वेश्चन लिख रखा है क्या? बताओ ऋतिक भाई, क्या गलतियां करते हैं? क्या गलतियां किया मैंने? क्या सोच रखा है क्या भाई गलतियों का? नहीं नहीं, एक तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा फोकस्ड होके नहीं प्रिपेयर करते हैं. कि मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि कोर का एकदम लास्ट लास्ट में प्रिपेयर करते हैं. कि जैसे कि काफी लोग हैं कि स्टार्टिंग से एसडी रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर लास्ट में एकदम से वो सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है कोर वाला ही कर लेते हैं. तो वो प्रिपरेशन थोड़ा सा पहले से ध्यान दिया जा सकता है कि ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है कोर में भी देखा जा सकता है, तो वो प्रिपरेशन थोड़े से पहले से आप कर सकते हो. मेनली हाँ फोकस आप एसडी में करो, लेकिन ऐसा नहीं कि लास्ट के 6-7 दिन बचे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं कोर का. देखो, इफ यू थिंक कोर इज इजी, ये तो भाई हम इसमें दोनों कहीं नहीं मिला था इसमें नौकरी लगी रहेगी, ऐसा नहीं है. सिंपल सी बात है, पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं लगेगी. बहुत लोगों की नहीं लगी थी, और तुम पढ़ोगे तो ही लगेगी. तो तुम्हें यू हैव टू वर्क हार्ड. इफ यू आर इनटू कोर देन मेक इट योर प्राइमरी लाइक फील्ड. इट शुड नॉट बी लाइक इट्स अ सेकेंडरी चॉइस फॉर अस. अगर कहीं नहीं हुआ तो यहाँ तो हो ही जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है. सिंपल सी बात, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है. लाइक कंपनीज और ऑल्सो लाइक उन्हें लोग बेटर लोग मिल रहे हैं, वो क्यों ही लेंगे. पहले ऐसा होता था कि कोर का उतना क्रेज नहीं था, तो पहले कई बार ऐसा हुआ है कि ठीक है कोर में लोगों की हो गई है, बट अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ये तो तुम पहले से ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कोर में जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो जिस फील्ड की कर रहे हो करो भाई. ऐसा कुछ नहीं होगा कि 7 दिन में पढ़ के लग गई. हाँ, और इस मोमेंट तक लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को कोर में जाना है या फिर मेरे को एसडी में जाना है. अब अब तो नहीं, अब तो टाइम नहीं बचा, अब तो टाइम है ही नहीं डिसाइड करने का. हाँ, एक और चीज जो मैं बताता हूँ, कई बार गलती करते हो लोग. मतलब मैंने देखा है लोगों को ऐसे गलती करते हुए. क्या करते हैं वो लोग, लेट्स सपोज कि मैं उस देखो यार, मैं सिंपल सी बात, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कैसे शॉर्ट लिस्ट लानी है उसके बारे में बता रहा हूँ. अगर तुम्हें आज क्वेश्चंस मिल गए हैं ना किसी कंपनी के, कहीं से भी तुमने जुगाड़ कर लिए, तो उन्हें आज ही करो. इट शुड नॉट बी लाइक कि मेरे को कॉलकम के क्वेश्चंस आज मिले एंड कॉलकम वो इज इन द एंड ऑफ अक्टूबर, उससे एक दिन पहले मैं कर लूंगा. ऐसा नहीं होने वाला है. तुम्हें जब क्वेश्चन मिल रहे हैं, डू इट राइट नाउ. योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कंपनी ओए, उसके बाद है सेकेंडरी सब कुछ. कंपनी का वही लगाओ, जहाँ से मिल रहा है वहां से लगाओ. तो दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो नहीं करना चाहिए. और उसके बाद डोंट लाइक, देखो कोर में ऐसा होता है, एसटी में थोड़ा अलग है कि उनके ओई में सिर्फ कोडिंग पूछ रहे हैं एंड देन इंटरव्यूज में जाके और भी चीज़ें पूछती हैं. हमारे में ऐसा ज़्यादा नहीं चीज नहीं होता है. जो चीज़ें ओए में तुम
पढ़ोगे ओए के लिए, उसी से मोस्टली तुम्हारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी. इट विल नॉट बी लाइक कि तुमने ओई की अलग से तैयारी की एंड देन यू आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. तो मैं प्रोजेक्ट्स का मैं पहले ही बोल दिया हूँ, जो भी डाल रहे हो सब कुछ आना चाहिए तुम्हें खुद से. तो और उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये वाले ही होते हैं. तो वो गलती मत करना. उसकी तरह से ही पढ़ना. एंड गलती और क्या कर सकते हैं यार, बहुत जो सिली मिस्टेक्स जो होती है ना यार. तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि फॉर एप्टीट्यूड पार्ट, स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस विद टाइम. तुम टाइम लगाओ, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो. 30 मिनट्स 20 क्वेश्चन, दैट्स इट. ये पूरा पैटर्न होगा दोनों कंपनीज का. वेलकम एंड टेक्सास दोनों का सेम पैटर्न है. तो वो अभी से करो, वरना एग्जाम में होके क्या जाता है, टाइमर चलता रहता है पता है साइड में. यू आर लाइक भाई तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तुम क्वेश्चन, भाई 2 क्वेश्चन हुए और 5-10 मिनट निकल गए. तो वो जब एंग्जाइटी होगी ना तुम्हारी पेपर में जाके, तो उसको मिटाओ अभी से. तो तुम्हें पता लगेगा कि 30 मिनट्स कितने कम होते हैं 20 क्वेश्चन के लिए. तो वो चीज़ करो तुम अभी से. वो गलती मत करो, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए. देखो यार, पहली सिंपल सी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम एग्जाम चालू हो गया तुम्हारा हुए, और उसके बाद तुम कुछ चीजें पहली बार देख रहे हो अपनी आंखों के सामने. पहली बार तुम टाइमर देख रहे हो भाई, पहली बार तुम देख रहे हो भाई 30 मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं. वो सब प्रिपेयर होके जाओ ये के लिए, वरना वहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जाइटी होगी. एंड उसके अलावा मैं बोलूंगा कि मेन जो हमारे वो है ना, कोर के वो थोड़े से लेट शुरू होंगे, उससे पहले तुम्हारी बाकी कंपनीज के वो शुरू हो जाएंगे. तो एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अभी तक टीपीसी वालों ने सब बता दिया होगा कि तुम 50 ओएस दे सकते हो एंड ऑल वो सब होता है. तो क्या करना, ओएस अपनी जो अपनी जो ये कोर वाली कंपनीज हैं, उनसे पहले जितनी भी एनालिस्ट वाली कंपनीज हैं, आई रिपीट एनालिस्ट वाली, उन सब के ओए देखे आना. बिकॉज क्या होता है, एनालिस्ट इज मेनली वो एप्टीट्यूड पूछते हैं एंड एसक्यूएल वगैरह होता है. तो तुम एप्टीट्यूड वाला पार्ट अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करके उठ के आ जाओ वापस. तुम्हें समझ आ गया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो देना, वो गलती मत करना. मैंने लोगों को देखा है वो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए बैठे रह रहते हैं, और उससे मतलब बहुत तुम खुद देखोगे बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें. तो वो करके आओ, ठीक है. बाकी तो यही है, गलतियां तो भाई तुम लोग सब इंटर्न में किए ही होगे, तुम्हें याद होगा. वो कम गलती तो मत ही करना फिर से जो इंटर्न में किए हो. Also, हेलो any tips to भैया, अगर मतलब कोई प्रोजेक्ट है प्रोटीएस का, उसमें सर्किट बना है, तो क्या उसका मतलब वेरिलॉग कोड होना जरूरी है या फिर ऐसे डाल सकते हैं प्रोजेक्ट? नॉट नेसेसरी, बिल्कुल भी जरूरी ओके. नहीं है. जस्ट यू शुड नो कि हाउ द सर्किट इज वर्किंग. वो तुमसे प्रोड्यूस ओपन करा के भी नहीं देखेगा. यू शुड जस्ट एक्सप्लेन द एल्गोरिथम यू यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ली होगी तुमने, देन उसको हाँ. सॉल्व किया होगा. तो यू शुड नो कि तुमने अप्रोच कैसे किया उसको स्टार्टिंग से एंड तक. दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे वो. ओके. हम्म. हाँ, और जो भी लिखो ना like रिज्यूमे any लिखना, क्या लिखना है रिज्यूमे में. और पूछ लो भाई इसके tips for the टाइप. situational questions that are asked in the interviews? लाइक दैट, लाइक मतलब, हाँ एक सिंपल सी चीज यार, जो ये सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं ना, बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. जो तुम्हें लगता है जो ऑनेस्ट है वो बोलो. इट शुडंट बी लाइक कि तुम उसके लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो अलग से. कुछ पूछा भाई कि टीम वर्क का क्या है, जैसे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टीम वर्क फलाना ढिमकाना. तो अब भाई तुम सब लोगों ने कभी ना कभी तो टीम में वर्क किया ही होगा ना यार, तुम्हें पता है कैसे करना है, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे सॉल्व होती हैं वो दिक्कतें. सबने एटलीस्ट कहीं तो एक प्योर तो सब लोग रखते ही हैं, तो वो टीम वर्क ही है. तो बी वेरी फ्रैंक विद एचआर. इस टाइप के क्वेश्चन एचआर ही पूछेंगे, तो बी वेरी फ्रैंक अबाउट दैट. डोंट मतलब इट शुडंट बी लाइक एक पूरा मेकअप सा क्वेश्चन, तुम मेकअप पहना के ले जा रहे हो कि अगर मेरे से टीम वर्क का क्वेश्चन पूछा तो मैं ये बोलूंगा. क्योंकि व्हाट हैपेंस, तुम जब ऐसा क्वेश्चन, तुम मेड अप क्वेश्चन जब उनको आंसर करोगे ना, दे विल आस्क यू सम फॉलो अप क्वेश्चंस एंड देन यू विल लाइक फंबल, लाइक उसका आंसर तुम नहीं कर पाओगे until unless you are very honest about that. तो मेरी तरफ से तो यही है. बाकी ऋतिक को अगर और कुछ इसमें बोलना है सिचुएशनल क्वेश्चंस पे. भाई वही है, सिचुएशनल क्वेश्चन में वही ऑनेस्ट रहो, क्योंकि ऐसा हर एक क्वेश्चन तुम बना के नहीं जा सकते. भाई यू बीच में कोई नेवर, अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, फिर तुम सोच लोगे कि अच्छा ये तो बना के मैं नहीं आया था, अभी तुरंत बनाता हूँ मैं, रुकिए जरा सा. तो
वो चीजें उनको साफ दिखती है। जो है ऑनेस्ट रहो। मान लो पूछ दिया जाए कि ठीक है तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी छोड़ दोगे, यहाँ से छोड़ देंगे कंपनी। भाई मेरे फैमिली से इंपॉर्टेंट है, कंपनी छोड़ देंगे। हाँ भाई मेरे से पूछा था कि तुम एनवीडिया में क्यों आ रहे हो, तो लाइक पैसा कमाने। अगर मैं चलो तुम यहाँ पे कोई भी लोगों में तुमसे कोई पूछे कि तुम हाउ व्हाई यू वांट टू कम इन दिस कंपनी, तो मतलब उसका कैसे तुम ठीक है बना के ले जाओगे उससे, पर कैसे उसको बोलोगे। मैं उसके जाके बोल दिया था कि मैं तो भाई कि एनवीडिया की जितनी हाइप हो रखी है इसलिए एनवीडिया में आना चाह रहा हूँ, पैसा तो और कंपनी है। तो लाइक और वो उसको बुरा नहीं लगा कुछ भी, इट्स में नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। लाइक तुमको हमेशा उसको खुश नहीं करना है यार, खुश थोड़ी करना है। वही है सिचुएशन क्वेश्चन यार। यही टिप है मेरी तरफ से कि प्रिपेयर, ठीक है थोड़ा सा प्रिपरेशन इज ऑलवेज गुड, बट इट शुडंट बी लाइक कि तुम में बना के ले जा रहे हो उसका आंसर। तुम नेट पे जाके पढ़ रहे हो भाई 50 टॉप 50 HR क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद आंसर्स, उस टाइप की सर्च मत करना है। लोग भैया आप लोग का लाइक अभी क्या काम है, लाइक क्या कर रहे हैं आप फील्ड में, लाइक भाई अभी तो जो तुमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे देखो यार उसका टेंशन मत लो तुम, क्योंकि यू नेवर नो तुम्हें किस टीम में जाने वाले हैं। जो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर वाइज हार्डवेयर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। लाइक यहाँ पे 50 तरह की टीम है और हर टीम का काम अलग है, और हर टीम के फंडामेंटल्स भी अलग है मैं बोलूँगा। बट कॉलेज लेवल तुमसे चीजें सेम पूछेंगे सब वो, एंड आफ्टर दैट दे विल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट यू, लिटरली रैंडमली, कोई किधर भी जा रहा है। उसके बाद फिर तुम्हारा काम डिसाइड होगा। किसी का पीडी का काम होता है, किसी का वेरिफिकेशन का काम है। जो लोग वेरिफिकेशन टीम में होते हैं वो लोग पाइथन कोड लिख रहे होते हैं, कुछ लोग सर्किट्स टीम में जाएंगे, कुछ लोग कहीं और जाएंगे। लिटरली हजारों 50 टीम है यार। सबसे मैं बताता हूँ, मेरे को और ये पता था कि एक सिक्योरिटी टीम होती है, तो मैं चिप की सिक्योरिटी के लिए टीम है एक अलग से, कैसे तुम उसको सिक्योर करोगे। लाइक सॉफ्टवेयर में होता है ना ये साइबर सिक्योरिटी, ऐसे एक हार्डवेयर हाँ सिक्योरिटी टीम। तो वो हाँ चीज बहुत सारी अलग अलग है, तो वो अभी मत सोचो। जस्ट हाँ, अल्टीमेटली एट ग्राउंड लेवल सबके फंडामेंटल सेम रहेंगे, बट काम बहुत डिफरेंट होता है सबका। और तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है जो भी टीम में डालेंगे तुम वो चीजें तुम सीख के तुम वो काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं वहां एक जाके एग्जाम्पल सीखने। देता हूँ, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, मुझे दिया है एग्जैक्ट एनालॉग का काम, और एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स का है मेरी टीम में, तो वो भी न्यू ज्वाइनी है, उसको दिया है एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर का काम दिया है। तो कुछ भी दे सकते हैं। ओके ओके। ये चीजें तो वही है कि तुम, और वो ऐसा है हम्म। कि जो काम वो दे रहे हैं दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू शुड नो इट। लाइक वो तुम्हें यहाँ पे आके सिखाते हैं वो काम। तो अभी तो तुम्हें बस इतना ही आना है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं कॉलेज लेवल पे दे आर एक्सपेक्टिंग, वही आना चाहिए बस। और उतना ही है यार, काम की मत सोचो अभी। बस हाँ, फंडामेंटल लेवल पे सबके बेसिक सेम होते हैं कि हर जगह सीमॉस यूज हो रहा है, हर जगह चीजें सर्किट बन रहे हैं, वही सब है। और कोई क्वेश्चन भाई तुम्हारे हो गए लिखे हुए क्वेश्चंस खत्म? Now the audience can ask any of their queries. अरे भैया अभी तो टिपिकली ऑडियंस, हर कंपनी के ओएस कौन से टाइम फ्रेम में होंगे? नवंबर में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कुछ, या जस्ट अक्टूबर में सब खत्म? अच्छा उस टाइप से एंड नवंबर और एंड अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट वीक उसी में हो जाएंगे मोस्टली। एनवीडिया का पता नहीं है, एनवीडिया हर बार लेट करती है। हमारे टाइम में एनवीडिया ने किया था 28 नवंबर रात को 12:30, तो इतना लेट। तो उसका कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम। बाकी कंपनीज का मोस्टली कोर वाली कंपनीज का लास्ट ऑफ अक्टूबर से नवंबर फर्स्ट तक। और मैं बताता हूँ हमारे टाइम में क्या हुआ था कि नवंबर पे जो वीकेंड था, 9-10 नवंबर पे वीकेंड था, उसी पे सारे टेस्ट हो गए थे। लिटरली सारे टेस्ट कोर के 2 दिन में हुए थे। तो इस टाइप का होगा हाँ। पर अ, नवंबर फर्स्ट वीक मान के चलो, अक्टूबर लास्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक। एंड भैया मैं एज अ बीटेक स्टूडेंट मैं कितनी कंपनीज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? इंटेल तो नहीं हायर करती बीटेक में से, एएमडी भी शायद नहीं करती है, तो एएमडी आती भी कॉलेज में? वो तो नहीं पता मुझे। बट एज अ बीटेक स्टूडेंट मैं कितनी
कर सकता हूँ एक्सपेक्ट कंपनीज? तुम लोग थोड़ा पिछले ईयर्स के ये तुमने देखे हैं कि कौन कौन सी कंपनी आई है, कौन कौन सी नहीं आई है? यू नो ना, इस सब का एक्सेस है तुम्हारे पास। तुम टीपीसी पोर्टल पे जाओ, लॉगिन सबका हो चुका होगा अभी तक अगर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और वहाँ पे तुम अपॉर्चुनिटीज में जाके देख सकते हो कि किस ईयर में कितनी कंपनीज आई हैं। वो चीज़ जाके देखो यार, अभी हम देख रहे हैं तुम्हारे लिए कौन कौन सी कंपनी आ रही हैं। तो वो चीज़ें ऐसा है। और देखो ये एनवीडिया, टेक्सास, कॉलकम, 3 कंपनी हैं ही, ये फिक्स हैं। उसके अलावा ओला भी आती है। उसके अलावा फिर ऐसी कंपनी आती हैं कि दे आर नॉट बिग कंपनीज बट दे आर गुड कंपनीज फॉर डिजिटल, लाइक उस टाइप की आएंगी कंपनीज। मोस्टली यही है। 7-8 तो मान लो, कम से कम 8 कंपनी आएंगी, 7-8, ठीक ठाक 8 कंपनी आएंगी। और हाँ, थोड़ा यार पहले से ये सब देख के रखो यार, क्योंकि प्रिपरेशन सब कर रहे हैं तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, कितनी आ रही है। ये सब चीजें देखो तुम थोड़ा। भैया आप लोग के टाइम में कितने कंपनी आए थे लाइक? यार अब वही बता रहा ना कि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट 3-4 बड़ी बड़ी कंपनी थी, ओला, टेक्सास, कॉलकम एंड देन एनवीडिया। एंड एनवीडिया के भी 2 रोल, अगेन कॉल टेक्सास के 3 रोल थे, एंड कॉलकम के 2 रोल थे से ये थी। उसके अलावा बजाज वगैरह भी आते हैं, वो कोर इलेक्ट्रिकल, दैट इज कोर इलेक्ट्रिकल, बजाज। एंड आती हैं वी गार्ड भी, कोर की कंपनी है, वो भी ठीक ठाक ही करती है। साइडेमेक करके एक स्टार्टअप आया था, बायो सिस्टम्स आया था, वो अभी भी आ गया है शायद बायो सिस्टम से इस साल। और भी हैं, मतलब 8-10 कंपनी मान के चलो। बाकी तो फिर बहुत सारी कंपनी आएंगी। एक एक और कंपनी आई थी यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। सिंगल चिप, हाँ सिंगल चिप करके कोई कंपनी थी, सिग्नल सिग्नल। चिप में भी, सिग्नल चिप में भी। हाँ सिग्नल चिप कुछ ऐसा था, वो कंपनी थी। उसके अलावा एनालॉग डिवाइसेस आई थी, लास्ट में आई थी, पर वो काफी मतलब फेज 1 खत्म हो गया था। और अगर तुम्हारे टीपीआर दोस्त हैं टीपीसी में, तुमको थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि जनरली इट हैपेंस कि दे डोंट फोकस ऑन कोर कंपनीज। तो थोड़ा सा फोकस कर, उसको फोर्स कर सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो तुम, कि मैं जो बोला ना ये कनेक्शंस वाली चीज, जस्ट लेट्स से कि आईटी रुड़की में कोई कंपनी आ रही है या फिर आईटी गुवाहाटी में कोई कंपनी आ रही है, तो ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शुड टेल टू टीपीसी कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही, यू शुड फाइट, तो बुलाओ। ठीक है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है। एंड वन थिंग आई कैन से, लाइक इंडस्ट्री में आने के बाद पता चल रहा है हमारे कॉलेज में कोर का लेवल आईटी रुड़की, आईटी गुवाहाटी और ये जो भी आईटी हैं थोड़ी बहुत अपने आसपास, उनसे बेटर है। तो तुम फाइट करो यार टीपीसी के साथ। हमने तो की थी हमारे टाइम पे, हमको दिखता था ये कंपनी उधर आ रही है, इधर क्यों नहीं आ रही, हम लड़ जाते थे। थोड़ा सा खुद से भी देखना पड़ेगा ये चीज। और कहीं, और भाई किसी को कोई डाउट है? मेरे को तो लग रहा है कुछ 2-4 लोग हैं, बाकी ये सब है ऐसे ऐसे जो भी है, ये स्टूडेंट काउंसिल जो भी है, काउंसिल सखा वाले लोग ही ज्वाइन करके बैठे हैं। भैया रिज्यूमे में क्या क्या डालना है, मतलब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं? फॉर्मेट लाइक आइडियली यही होना चाहिए, फर्स्ट योर स्किल सेट, एंड स्किल सेट इज लाइक जो मैच करे तुम्हारी डोमेन से। स्किल्स, लैंग्वेज जो भी उसमें डालते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, 3 चीज़ें होती हैं शायद, वो 2-3 चीज़ें डालो। उसके बाद तुम्हारा अबाउट इंटर्नशिप, कि ये तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो कुछ सर्टिफिकेट होगा ही तुम्हारे पास, उसका थोड़ा मेड अप करके डालो। और अगर किए तो काफ़ी अच्छा है। तो इंटर्नशिप, देन प्रोजेक्ट। तुम लाइक इफ यू हैव, लाइक मैंने 2 प्रोजेक्ट डाले थे, पर लोग 3 प्रोजेक्ट भी डालते हैं, तो यू कैन गो विथ 2 प्रोजेक्ट्स विद सम सर्टिफाइड कोर्सेज और 3 प्रोजेक्ट्स विद नो सर्टिफाइड कोर्सेज। तो मैं 2 प्रोजेक्ट डाल के 2-3 सर्टिफाइड कोर्सेज डाल दिया था। कोर्सेज इन द सेंस जो काफ़ी फेमस कोर्सेज माने जाते हैं, वो वाले कोर्सेज ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद तो वही है, पीओआर का एक सेक्शन रहता है, 1-2 पीओआर लिख दो छोटा छोटा। एंड देन यूआर जो भी अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स का सेक्शन रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर का सेक्शन रहता है। आई वुड से कि ये सेक्शंस ऐसे हैं कि थोड़े होने चाहिए। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तो हैं ही, बट बाकी चीज़ें भी कभी कभी वो लोग देख लेते हैं।
इट शुडंट बी कि लाइक तुमने 4-5 प्रोजेक्ट डाल दिए बट तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं डाला, तुमने पीओआर कुछ नहीं डाली। एक्स्ट्रा करिकुलर तो काफी इंपॉर्टेंट है, तुम पीओआर को एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ऐड कर सकते हो कि अलग से पीओआर वाला सेक्शन डालना इतना जरूरी नहीं है, पर एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए। एंड अचीवमेंट्स जो भी तुम्हारे हैं, नहीं है तो भी 1-2 बना के डाल दो, कुछ भी सब वेरीफाई हो ही जाते हैं। बाकी डिजिटल ऐसा करो तुम अपनी अपनी जिंदगी सीनियर से तुम्हारी बात होती है कोर के डोमेन्स में, उनकी रिज्यूमीज मांग लो तो एक आइडिया उससे भी लग जाएगा। अच्छा, डिजिटल का रिज्यूमे एनालॉग में लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। डिपेंड तुम्हारे पास अगर एनालॉग का अलग से है तो आई वुड प्रेफर वो, मतलब क्या ही चेंज होगा, प्रोजेक्ट्स ही चेंज होंगे थोड़ा बहुत, बाकी तो सब सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो आई वुड से अगर अलग से प्रोजेक्ट्स तुमने थोड़े किए हुए हैं या फिर तुम्हारी प्रिपरेशन है तो तुम एक अलग से रिज्यूमे बना लो यार, 20 रिज्यूमे बना सकते हो तुम। अभी पोर्टल ओपन है क्या वो रिज्यूमे बनाने वाला? रिज्यूमे तो बन गया होगा ना इन लोगों का भी। मतलब पता नहीं पोर्टल ओपन है कि नहीं, बन तो गया होगा वैसे, बना लिया होगा सबने। अगर अभी भी ओपन है तो उसमें प्रोजेक्ट्स, अच्छा प्रोजेक्ट्स तो तुम कभी भी ऐड कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स ही चेंज अभी होंगे। ये हम्म। फील्ड्स वगैरह तो खैर वो तो बताया गया ही होगा, फील्ड्स वगैरह ऐड करने का बाद में ऐड नहीं होता है। हाँ वो ये सब टीपीसी बता दिया होगा उनको क्या करना है या नहीं। और कुछ भाई? पूछ लो भाई। उसके बाद भैया जैसे मॉक इंटरव्यूज देने वो कहाँ से दें? फ्रेंड्स। भाई नहीं है, ऐसे ऐसे करवाता है ना मॉक इंटरव्यू, वो बिल्कुल मिस नहीं करने भाई, वो देने हैं। अच्छा ठीक है। हाँ मॉक इंटरव्यू देने हैं, और तुम्हें एक मॉक इंटरव्यूअर असाइन होगा, तुम्हारी फील्ड का एक कोई अच्छी कंपनी का इंटरव्यूअर असाइन होगा। तो तुम एक मॉक इंटरव्यू दो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरी थोड़ी प्रिपरेशन का, मैं 2 दे लो। और वो अपने ही एलम्स होते हैं सारे, और बहुत पुराने एलम्स नहीं होते, तो दे विल हेल्प ए लॉट। मतलब मैं तो 2 बार उनसे बोल दिया था कि मेरा 2 बार अलग अलग इंटरव्यू ले लो। एंड उसके अलावा तुम अपने जो भी सीनियर्स हैं, नॉट नेसेसरली फ्रॉम कोर फील्ड और समथिंग, एटलीस्ट तुम रिज्यूमी का उनसे बोल सकते हो कि भैया ये मेरी रिज्यूमी है, तुम इससे ही मेरा इंटरव्यू ले लो जो भी है। तो उस टाइप की चीज़ें भी कर सकते हो, कोई भी तुम्हारा एक जो सीनियर है, एटलीस्ट तुमसे भी उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मॉक इंटरव्यू दे के जाना, मॉक इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट। ऐसे आईसी ने निकाला है अभी तक फॉर्म वगैरह कुछ? वो हो गया था मतलब पहले ही, जून के टाइम पर। वो तो इंटर्न के लिए होता है ना जून पे, तो अभी प्लेसमेंट के लिए अलग से होता है, अभी नहीं हुआ है तो शुरू होगा वो। अभी नहीं हुआ है। तो वो शुरू होगा, उसको भूलना नहीं, उसमें करना। और तुम से इलेक्ट्रिकल के कितने लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करोगे कुछ, इलेक्ट्रिकल वाले करोगे? हाँ, कोई नहीं है क्या इलेक्ट्रिकल का? सही है भाई ये तो। हम्म। चलो सब इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है, ये अच्छा है। मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल वालों का थोड़ा अच्छा है, लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा तुम ये वाला क्वेश्चन करके जाना, मतलब मैं तुम्हें एक सिचुएशन क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि वो पूछेंगे ही, कि यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, व्हाई यू वांट टू कम दिस फील्ड, वो टाइप का क्वेश्चन। वो सबसे पूछते हैं, एचडी वालों से पूछते हैं, तुमसे ही पूछेंगे, तो वो थोड़ा ढंग का सा कुछ क्वेश्चन बना के ले जाना। बाकी तो चले, और कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई, बाकी तुम लोगों को खाने जाना होगा अब। और कुछ, अगर तुम सब लोग सेम ब्रांच से हो तो तुम में से कोई एक मेरे को डीएम कर देना, आई वुड शेयर माई लाइक जो भी रिसोर्सेज वाली फाइल है, एंड वो फिर आपस में शेयर कर लेना जो भी है। ठीक है। Thank you. This has been an incredibly insightful session, and I would like to thank both of you for giving us your time. Now, I would like to present the online memento.
क्या है ऑनलाइन मोमेंटम? चैट में किधर है भाई ऑनलाइन मोमेंटम? मेरे को दिख नहीं रहा। ओ ठीक है, हम लोग कॉन्वो में आ रहे हैं यार, इसको प्रिंट करवा के दे देना। हाँ, तो कर ही देंगे ये लोग। चलो गाइस, बाकी बढ़िया है यार। सीनियर से कांटेक्ट में रहो और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कनेक्शंस बनाओ बाकी कॉलेजेस में, वहाँ से बहुत हेल्प होगी। यही है। ऑल द बेस्ट फॉर द प्लेसमेंट्स। कुछ भी हो रीच आउट कर और लेना। बाकी कुछ हो तो डायरेक्टली तुम लोग रीच आउट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब, खैर ये सीएस का इनिशिएटिव था, काफी अच्छा था इनिशिएटिव। लेकिन इसके अलावा भी तुम लोग को रीच आउट करना है तो डायरेक्टली विशाल को या फिर मुझे, किसी को भी तुम रीच आउट कर सकते हो। चले भाई, ऐसा मतलब कुछ तुम नहीं है कि हाँ कुछ सेशन होगा तभी रीच आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कभी भी। ऑल द बेस्ट। बाकी कॉन्वो पे आ रहे हैं हम लोग, तो फिर कॉन्वो पे किसी को कुछ ऐसे डाउट हो मिलके पूछ लेना। बाकी हाँ, कांटेक्ट बनाओ यार, बहुत ज़्यादा important है, उससे होगा। और अच्छे लोग पढ़ो यार, इतनी हायर तो करके ले ही जाती है कंपनियां, हो जाती हैं हायरिंग। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। चलो थैंक यू भैया। Thank you everyone for joining us today. On the behalf of Student Counseling Service and Career Council, I wish you all the very best. हमारी तरफ से भी ऑल द बेस्ट गाइस। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।